Let's talk about business. Yes, How it's going. it's good. I am able to live in Bombay. From turning denim into masterpieces So hopefully it goes well. It's going to grow. Meet Seep Chaplat, the artist who paints stories, not just canvases. Consistent, constant. कांस्टेंट रहने का प्लान है पर अभी के लिए मुझे ऐसा है कि मेरा जो एनर्जी है मुझे उसको यूज करना है इन द बेस्ट वे पॉसिबल. It is 5 a.m. in the morning and I need to make a very early toddler. You are hustling very hard, but you are not expecting. या यार ये कैसे होता है? it's also about what you're working on. So one thing that I really learned, and it's from the book that I was talking about, is if you have the ability to talk really well, if you have the ability to just be smart, because people think that okay, you're really smart and whatever that you're doing, it's great. But when you come home and nobody is watching, कोई नहीं देख रहा है, तब तुम क्या कर रहे हो? तब are you able to do the hard work in those 4 hours or 5 hours when nobody is watching, nobody is appreciating? मैंने कहीं पढ़ा था, एज अ रिसर्च मैंने करी तो मेरे को थोड़ा पता चला कि आप अकेले रहते हो और ऊपर से क्या कहते हैं एज अ क्रिएटिव फील्ड में हो आप. हाँ, तो वो डील कैसे होता है? मतलब ये एक टाइप का चैलेंज लगता है आपको या एक टाइप की अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें सेटल कर सकते हो या चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो? मैं बोलूंगी आई थिंक अब मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं अकेले रहते रहते. ओके. नाउ इवन इफ इट्स हार्ड, इवन इफ इट्स इजी, I love it. I just love to do this life. I know even now when I go back to my parents' house, I live there. Now even I'm not even saying that it's my house, to my parents' house. It's just it's instilled in me that way. So even if I go back, it's like मतलब मैं रहती हूँ and then I don't know this whole feeling of because I've been doing it for 4 years to just like figure out life by myself, to figure out things. Of course, मतलब ऊपर नीचे तो होता है, that's part and parcel. But to just experience this, to go to an apartment where you have like created a lot of things and it's there, it's just entirely you. So you are comfortable with solitude. yes, a lot. ओके. मतलब टाइम कैसे स्पेंड करते हो? क्या क्या करते हो अपार्ट ऑफ At फ्रॉम योर this वर्क? point, my routine is completely messed up. There's no routine as such, but there's a lot of art, of course. But I also so when I came here, I was a complete introvert. I was an introverted person entirely. ओके. I was so scared of talking to like other people and all of that. But then Okay. I think I sort of started going to a lot more events. I started showing up to a lot more things, and then now I just have this sort of community. I, in general, have a lot of people around me, ओके. and then that's what really. So for me, it's like, of course, art, but meeting a lot more people on a daily basis, talking to Okay. them, just interacting with them. That's my usual thing. So if you ask me two things that are constant every day, it's like talking to a lot of people, just interacting with the socializing and Okay. doing art. आप अपनी स्पेस में कंफर्टेबल हैं? और बहुत टाइम लगा है इधर पहुंचने के लिए. मतलब मैं बोलूंगी तो मैं जैसे कि मैंने बताया, आई वाज इन कॉलेज. ओके. मतलब मैं कॉलेज में थी एंड देन दैट्स व्हाट आई थॉट, बिकॉज यूजुअली जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो आपको ऐसा लगता है कि हर एग्जाम में फर्स्ट आना है, सबसे अच्छे मार्क्स लेके निकलना है. एंड बिकॉज आई हैव बीन परफॉर्मिंग वेल एकेडमिकली सिंस आई वाज अ किड, इट्स ऑलवेज इन यू दैट ओके, हर जो भी आप कर रहे हो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, सब में यू हैव टू सिक्योर इन जनरल सिक्योर अ पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होता है. एंड देन इन कॉलेज इन जनरल वो कॉलेज के एनवायरनमेंट में मुझे समझ में आया कि कंपटीशन एंड कंपैरिजन आर थिंग्स दैट आई कैन नॉट डील विद. मतलब वहां पे आपको ये बिलीव कराया जाता है, जैसे अगर मेरे साथ में 50 लोग मतलब स्टूडेंट्स और हैं, तो वो आपको ये बिलीव करवाएंगे कि आपके जो अराउंड इनके साथ आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ कम्पीट कर रहे हो. compete कर रहे हो. तो वो Okay. आपका थॉट प्रोसेस ही वैसा होता है कि आप ये नहीं सोचोगे कि ठीक है मैं इसको हेल्प कर लेती हूँ बिकॉज मेरा ही तो बैचमेट है. आप ये सोचोगे कि नहीं इसको, वैसा आपको मतलब समझाया जाता है, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड, बिकॉज आई वाज डूइंग इंटीरियर डिजाइनिंग. ओके. तो उसमें इतना कम्पिटिटिव होता है, मतलब ये नहीं बताया जाता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है. ये बताया जाता है कि तुम 60 लोग हो और तुम में से सिर्फ 3 या 4 लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा. ओके. And then I realized that it's not something that I can deal with. And that's why a lot of other things also, that's why I thought of dropping out of college. So Oh, you are a yeah, I'm a dropout. college dropout, yeah. Oh, nice. So after 6 months I dropped out. इसी वजह से तो उसके बाद मैंने 6-7 महीने
बहुत फालतू चीजें बोल दो, मतलब काफी चीजें जो मेरे दिमाग में आया था सब करा है, विदाउट थिंकिंग अबाउट इफ आई एम लाइक गेटिंग पेड और नॉट, इफ आई एम, मतलब मैं वो हो गई थी कि जो भी हो मुझे, क्योंकि मैंने जब कॉलेज ड्रॉप करते हैं ना तब उसके बाद ऐसे हो जाता है, या तो आप बहुत ऐसे हो जाते हो कि अब पता नहीं क्या होगा, या आप पे बहुत ऐसा डिसिप्लिन आ जाता है कि यू हैव टू आंसर योरसेल्फ बिकॉज यू हैव टेकन दैट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। तो मेरे में वैसा हो गया था कि नहीं, प्रूफ तो खुद को प्रूफ करना है, कुछ होना हो खुद को प्रूफ। तो 7-8 महीने मैंने इतना मेहनत किया, एंड देन एंड ऑफ द ईयर इज व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स हैपनिंग फॉर मी थ्रू आर्ट। और धीरे 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 होते होते अभी आई थिंक 1 साल हो गया है फॉर मी टू बी इन दिस फील्ड completely, and that's why I value this so much, because I've seen the other side as well, me being in that underconfident era and just like being in that, nothing else. Can you please tell something more about your dropout thing? Yeah. So I joined college when in August 2023. Okay. Yeah. It was the first semester, and first semester usually बहुत creatively happening होता है, क्योंकि आपको बेस बनाना है, फैकल्टीज को भी आपका बेस बनाना है, तो आपको बहुत मतलब आइडियाज ऐसे बोल देते, जो भी आइडियाज आ रहे हैं आप लेके आओ, हम क्रिएटिवली हेल्प करेंगे ये वो। तो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट ऐसा ही था कि मतलब आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है बट वो आपके क्रिएटिव आइडियाज। और मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि ठीक है, मुझे टेक्निकलिटीज में ठीक है थोड़ा बहुत, बट मुझे ऐसा है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हैं, वो सब था। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, और मैंने तो उसमें फर्स्ट सिक्योर भी, मतलब फर्स्ट पोजीशन भी सिक्योर कर ली वो वाले असाइनमेंट में। फर्स्ट सेमेस्टर में आई सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन जनरल, एंड देन वो वाले असाइनमेंट में फर्स्ट था। एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड में ऐसा हुआ कि टेक्निकलिटीज जो, अब कैसा होता है ना, व्हाट वी थिंक इंटीरियर डिजाइनिंग इज, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज इन जनरल। आप काफी चीजें अलग सोचते हो, वो काफी अलग टर्न आउट होता है। तो जब सेकंड सेमेस्टर में मैं गई तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट जस्ट, आई टेल यू अ बेसिक डिफरेंस फॉर यू टू लाइक अंडरस्टैंड इट बेटर। सो इफ यू सी there's art which is abstract art, what I do today just by myself, and there's interior designing or any kind of design field. So there's a difference in art and design. Interior design में क्या होता है कि आप creatively सोचो, बट ये एक बॉक्स है, उसके अंदर रह के सोचो कि मतलब आपके पास ये नहीं है, क्योंकि आप अगर if you're making a house you'll just tell me to make it functional and simple. If it's not that creative it's fine. आप यही बोलोगे कि भाई मुझे एक सिंपल, मेरा ड्रॉअर अच्छे से खुल जाए, बंद हो जाए, वैसा चाहिए। हाँ, वहां पे क्या होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रही हूँ, मेरे आइडियाज, क्योंकि मेरे आइडियाज इतने ऐसे क्रिएटिव थे बट वो उस बॉक्स के अंदर फिट नहीं होते। तो तब मुझे समझ में आया कि मे बी, और मैं बता रही हूँ मेरे को तो रियलाइज भी नहीं होता कि मे बी द कोर्स इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू ऑलवेज थिंक finishing that thing and then moving on to something else. For you we've made this concept that okay, you can't quit something, if you've started something, don't quit, just do it. And then I was like, but I was not well mentally after first semester. I was like, things are not happening for me. मेरे मार्क्स नीचे जा रहे थे, तो मैं खुश नहीं थी। मेरे डैड जो है, मैं उस वजह से 10 दिन घर भाग गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मेंटली बहुत गंदे, जनवरी 2024 was my worst phase. और मैं उस टाइम घर भाग गई जनवरी खत्म होने के बाद। मेरे डैड ने, बिकॉज मेरे डैड ने पूरा मेरा जर्नी देखा है इन जनरल, मुझे काफी, और हम हमेशा से बचपन से ये बात करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। एंड माई डैड हैज ऑल्सो डेल्ट विद डिप्रेशन, सो ही नोज व्हाट इट फील्स टू just not feel happy, or what it feels if you're not doing something that makes you happy. So he was the one who sat me down and he was the one who told me, look, this is something which is not working out, maybe the course is a problem. And जब मेरे पापा ने बोला तब मुझे रियलाइज हुआ, yes it can be that. So सेकेंड सेमेस्टर जितना बाकी था, मैं वापस बॉम्बे आई, मैंने उस टाइम में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना शुरू किया और सोचा कि मैं सेकंड सेमेस्टर में मुझे अगर समझ में आ जाता है तो मैं छोड़ दूंगी, अगर नहीं समझ में आता कि मैं कुछ और कर सकती हूँ तो मैं यही कंटिन्यू कर लूँ। और मैं तो जब वापस बॉम्बे पहुंची तब मुझे समझ में आ गया, सेकंड दिन ही समझ में आ गया था। आई डिडंट गो टू कॉलेज आल्सो आफ्टर दैट। आफ्टर मतलब एज यू हैव टोल्ड अबाउट, आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया, मतलब एक बहुत मतलब वो होता है कि यार बैकबोन, मतलब एक बहुत हेल्पिंग होता है कि जब एक कोई पेरेंट सपोर्ट करे, खासकर ऐसे बड़े डिसीजंस पे। यस ऑफ कोर्स। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो आपने कहा ना कि आप छोड़ नहीं पा रही थी ड्रॉप आउट चीज़ को, मैंने आज ही एक क्या कहते हैं, मैं ऐसी साइकोलॉजी ये चीज़ें पढ़ते रहता हूँ, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो एक है एक फैक्टर कि अगर आप किसी चीज़ में
इन्वेस्ट हो चुके हो, मतलब आप किसी कोई चीज़ स्टार्ट करी है उसमें इन्वेस्ट हो चुके हो और आप हाफ वे हो, आपको थोड़े बहुत दिख रहा है रिजल्ट बट उतना नहीं दिख रहा जितना आपका विजन है, तो आप उसको छोड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि आपके साइकोलॉजिकली लगता है कि आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट करा है, हाँ तो उस चक्कर में आप उसको छोड़ भी नहीं पाते, तो वो डील करता है। बट आई थिंक सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग मतलब अगर मैं देखूँ इन सबसे तो वो यही है कि आई अंडरस्टूड द प्रिविलेज दैट आई हैव टू ट्राई सो मेनी थिंग्स। या वही आप जैसे मतलब जो व्हाट यू आर सेइंग कि मतलब व्हेन वी थिंक दैट ओके आई हैव पुट माय टाइम इनटू दिस, हाउ कैन आई क्विट दिस, बिकॉज मेरा टाइम एनर्जी तो लग चुका है। अब मेरा जो 6 महीने गया 7 महीने गया, उससे पहले मैंने एक गैप ईयर लिया, उसके बाद मैंने सोचा मुझे इंटीरियर करना है। हाँ वो 1 साल का गैप लेने के बाद मुझे लगा मुझे इंटीरियर करना है, मैंने 6 महीने उसमें निकाले। हाँ तो मुझे ऑब्वियसली यही लगेगा कि अब इतना टाइम इसमें लगा दिया है। हाँ Then I also understood that if I have that chance to not try this and try something else, why not? टाइम में बहुत दूसरे बहुत में कम भी लोग ले पाते हैं ऐसा डिसीजन, हाँ इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स यू नो। थैंक यू। बट टेल मी समथिंग अबाउट दैट, इसके बाद क्या हुआ, मतलब आपने ड्रॉप आउट कर लिया बट आप मुंबई में थे, बट उस टाइम से लेके अभी तक का क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या रास्ता रहा है? Yes. जब मैंने करा था ड्रॉप मैं तब रहती थी, सो अभी मैं रहती हूँ, मैं आपको मतलब थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ बॉम्बे का। हाँ जब मैं कॉलेज में थी तब मेरा कॉलेज जो है वो ऐसे एरिया में आता है जो कि काफी कॉर्पोरेट है उसके अराउंड, तो मैंने कॉलेज के पास में कर लिया था। तो मेरा लाइफ उस टाइम कुछ ऐसे था नहीं कि मैं मतलब, बट मेरा आदत ऐसा था सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, क्लास जाना, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ Okay. अपने धुन में, और मैं ऐसी थी कि कोई मुझसे भी ज्यादा बात है, मैं एकदम मतलब एकदम अपने जोन में, मैं किसी से बात नहीं करती थी, वैसी इंसान थी। मेरा पूरा इन्वायरमेंट ही वैसा था। Okay. जब मैंने कॉलेज क्विट किया और फिर मैंने आई थिंक नेक्स्ट, तो मैं बताऊंगी कि मैं I would just say that even though I knew my talent, I was very underconfident. I Okay. was very मतलब ऐसे कि not knowing my potential entirely. I knew I was disciplined कि मुझे करना है, but this whole ऐसा होता है ना, validation मेरे अंदर नहीं था. I was still seeking validation from like the Okay. external world. हाँ तो but I think the best thing happened was that I just tried to show up for a lot of things in general. हाँ कि मतलब जो भी हो रहा है, मतलब बस जाना है जाना है जाना है, तो वो मे भी मुझे हेल्प करा टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। ओके और सबसे मेन मेरा टर्निंग पॉइंट मैं बताऊंगी तो वो ये है कि मार्च 2024 में मैंने क्विट करा, मतलब प्रॉपरली मैंने कॉलेज क्विट कर दिया। उसके बाद मैंने 6-7 महीने बहुत फालतू, बहुत रिजेक्शन, मतलब कि ऐसे ठीक है गए, बहुत ऐसे वहां पे नहीं हो रहा है तो वापस घर आ गए, वापस अगले दिन ट्राई करा, ऐसे करते 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 मुझे याद है मैं नवंबर में सो मैंने ना फाइन आर्ट की क्लास ज्वाइन कर ली थी, ऐसे रैंडमली हर दिन 2 घंटे आप क्लास करो वैसा कुछ, तो मेरी क्लास में थी। Okay. और उस टाइम मतलब इन जनरल उस टाइम मेरी एक रोल मॉडल आर्टिस्ट थी जो बॉम्बे की है, तो उसने अपना खुद का आर्ट स्टूडियो खोला था उस टाइम नवंबर 2024 के टाइम पे। एंड मैं मेरी क्लास में थी और उसने बस ये लिखा, क्योंकि दिवाली का टाइम था तो शी वाज डूइंग दिस दिवाली पॉपअप, तो उसने ये अपनी स्टोरी पे डाला कि we're doing this pop-up and if anyone who's interested in putting up a stall just let us know. एंड आई वाज लाइक उस टाइम मुझे तो ये जैकेट का बिजनेस बहुत बाद में स्टार्ट, उससे पहले आई वाज जस्ट डूइंग टोट बैग्स, तो सोच रही थी कि यही कर लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा, टोट बैग में पेंटिंग करके। तो मैंने उसको बोला कि हे आई कैन डू टोट बैग्स विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग हर टू रिप्लाई बैक बिकॉज इतने सारे लोग हैं। एंड शी वाज लाइक एक्चुअली वी ऑलरेडी हैव समवन फॉर टोट बैग्स बट कैन यू जस्ट ट्राई समथिंग एल्स। एंड मुझे था मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं, मैं क्या ही दूं, बट मुझे ऐसा था कि मुझे मतलब कुछ कैसे अगर अभी से कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो कुछ तो टर्न आउट हो। तो मुझे पता नहीं था क्या बोलूं, बट मैंने ये बोला कि look, even if these things doesn't work out, in general they don't work out, I am just there to volunteer for the pop-up, कि मतलब मैं बस हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। And then she was like, okay then come to the studio right now. मतलब ऑन द स्पॉट मैं मेरी क्लास में उसका मैसेज आता है कि ये एड्रेस है स्टूडियो का, कम टू द स्टूडियो वील टॉक। मैं स्टूडियो पे जाती हूँ एंड आई कुडंट बिलीव कि ये हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा से ऐसा रहता है ना कि आप कभी मिलोगे नहीं बट आपके अकॉर्डिंग हमेशा वो एक रोल मॉडल रहेंगे। वैसा था। तो मैं वहां गई, मैं उनसे बात करी, ये सब हुआ, तब उन्होंने बोला कि आप ये 2 दिन पॉपअप करो, अगर मुझे आपका काम अच्छा लगता है जैसे भी आप करते हो तो आई विल हायर यू। एंड देन मैंने 2 दिन तो फुल जी जान लगा दी, सब कर दिया, मैं बोला कि अभी तो इम्प्रेशन बनाना है। तो वो हुआ, वो खत्म हुआ और फिर उसके बाद
So I was the first in-house artist at that studio. Okay. And then that's Nice. how the confidence that was not there हाँ. sort of started coming in, because so it's also a high profile thing in general, like the studio. So Okay. people who were coming in, I had to deal with them, I had to host workshops, a lot of things. So that sort of gave me a lot of confidence to just, ऐसा समझने कि हाँ मेरे में पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ. और उसी टाइम मेरा जैकेट का बिजनेस, मेरी एक जैकेट की रील थी दैट वेंट वायरल. तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरा ये काम स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट उसी टाइम, और उसके साथ साथ में जैकेट का बिजनेस भी स्टार्ट हो गया. तो वो कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन जो मुझ में नहीं था, मैं खुद को नहीं दे पा रही थी, वो अपने आप इंटरनली धीरे धीरे आने लग गया. एंड देन आई रियलाइज दैट ओके, थिंग्स आर हैपनिंग, धीरे धीरे हो रहा है. बट 3 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मतलब अब वो कैसा होता है ना कि कोई चीज अगर ग्रो कर रही है तो वो ग्रो करेगी, बट एक पॉइंट पे आके ये नहीं होगा कि नीचे जाएगी, बट वो कांस्टेंट रहेगी. हाँ. कि मतलब कैसे ग्रो कर रहा है, मुझे पता था जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वो ग्रो कर रहा है, बट मैं पर्सनली आई रियलाइज दैट ओके, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर मी आफ्टर दिस पॉइंट. सो व्हेन आई रियलाइज दैट, तो मैंने 3 महीने बाद स्टूडियो छोड़ दिया. हाँ. And then after that, I just thought of doing a lot of things on my own. And in that time is when I also found a book club. So, like the community that I was talking about, like the people from the community, everything, it's just like because I found that book club and I realized that, okay, these are the two things that I really want to work on, which is to build something like in terms of community and just me to focus on myself. एंड देन मेरा रीडिंग का हैबिट बिल्कुल जा चुका था, तो मुझे ऐसा था कि मे बी थ्रू दिस maybe I can rebuild my reading habit. You read a lot. Yes. What kind of things? I'm a keen, so I'm a member of a book club and we do a lot of things around books. और मैं usually एक दिन में readers authors के around ही होती हूँ. Okay. Normally, yeah. So what kind of stuff do you read? Fiction or non-fiction? No, I don't have that thing, so I don't even like see that if the book is fiction or not. For me, it's just like if I'm seeing the cover and if it's interesting, I won't mind reading it. That Suggest me something. Actually, right the thing now, is, I like to read, but मैं self help ये कह लो या non fiction में इतना हूँ कि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं करा, बट मैंने ट्राई कर रखा है फिक्शन में जाने का. मैंने दोस्तोस्की को भी ट्राई कर रखा है, फ्रेंड्स काफका को ट्राई करने की कोशिश करी है, बट आई कांट रीड मोर देन 10 पेजेस. वो हुक नहीं हो पाता हूँ मैं, या वो नहीं हो पाता हूँ. एंड इट्स यूजुअली द अदर वे अराउंड, क्योंकि यूजुअली लोगों को फिक्शन में ज्यादा होता है, वो नॉन फिक्शन में नहीं जा पाते. हाँ. But it's different with you. But I would just say that there's this recent reel that went viral of mine where I talked about this whole thing that okay, there's a book called Show Your Work. I don't know if you've seen that reel or you reached out from that reel or I don't know. So that book literally made me start an Instagram account. Show Your Work. Show Your Work. It's an amazing book, and especially there's a lot of design art kind of thing in that book. So it's like if you sit for 1 hour and just read that, you'll be able to complete it. Okay, I'll try. Yeah. But it's an amazing. I want to ask you one more thing that as such आप क्रिएटिव फील्ड में एज अ आर्टिस्ट हैं आप, तो मेजॉरिटी आर्टिस्ट जब पेंट करते हैं या अपना आर्ट वर्क करते हैं तो उनके आर्ट में उनकी कोई डीप डाउन चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है. उनका पास्ट हो गया, उनका थॉट प्रोसेस हो गया, वो रिफ्लेक्ट करता है. अगर एक अननोन आदमी जो आपको नहीं जानता है वो आपके सारे आर्ट वर्क्स देखेगा, तो आपके अकॉर्डिंग उसे क्या लगेगा कि इनमें क्या है? If to be very honest, I don't think that much in general. Okay. So और especially अभी मैं जितना भी आर्ट कर रही हूँ वो mainly commercialized है. I'm not doing anything which is related to me personally. क्योंकि यूजुअली कैसा होता है, मैं कस्टमर बेस्ड, मतलब ऐसा होता है ना मेड ऑन ऑर्डर, कि कस्टमर का ये रिक्वेस्ट आया, हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंगली जो भी मैंने आर्ट बनाया वो उसके अराउंड होता है. तो मैं अगर आप पूछेंगे मैं प्रोडक्ट्स क्या बना रही हूँ वो सब, तो उसमें जैसे कस्टमर ने जो भी बोला, जैसे कस्टमर ने बोला कि हमारा एंगेजमेंट है, हम दोनों को ये जैकेट बनाना है, मैं और मेरे हस्बैंड को ये जैकेट, मतलब जो भी फियांसे है उनको जैकेट बनाना है, तो मैं बस उनका जो पिक्चर है, जो भी उनको वो करना है, रिफ्लेक्ट करना है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट इट आउट देयर इन टर्म्स ऑफ आर्ट. बट अगर आप मतलब तो उसके थ्रू ये नहीं जान पाएंगे कि वो मेरे में मतलब मैं क्या सोचती हूँ वो सब, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक कस्टमर जो चाहता है वो सबसे पहले निकल के आए. ऑफ कोर्स. बट आई ऑल्सो होस्ट वर्कशॉप्स.
art workshops. So if you ask me, my entire aim is to make a lot of people try. I won't even say try, because हमने सबने कभी ना कभी art तो करा ही है, when course. even when we were kids, हाँ. कभी ना कभी करा है, बट वो वही होता है कि जब बिजी होने लग जाता है तब छूट जाता है. तो मैं वही चाहती हूँ कि मेरे वर्कशॉप्स के थ्रू जितने भी लोग हैं, अगर वो just if they can just come back to art even for 2 hours, that's my entire aim. So that's something that you can maybe see for me through my workshops. I can just like rely on that okay, if you're coming to my workshop, you'll be able to have fun with art even if you haven't tried it like in so many years. What is the thing is, मैं इसको पुट कैसे करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसा कोई आर्ट फॉर्म या ऐसी कोई चीज़ पर्टिकुलरली आपके आर्ट से रिलेटेड जो आपके दिल के बहुत पास हो. अभी तो सोचना पड़ेगा. हम जनरली ये चीज़ के बारे में सोचते नहीं है, पता है. नहीं यार, क्योंकि मेरी मेमोरी तो बहुत करती है. नो प्रॉब्लम. नहीं यार, Take your मतलब time. ये ऐसे पता नहीं, मैं ना हमें मतलब यूजुअली मेरे को कोई आर्टवर्क याद ही नहीं आता जिससे मैं एक्सट्रीमली अटैच रही हूँ. ऑफ कोर्स एक मुझे पता है, मुझे याद आ गया. एक जो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है वो है, मैं सुधा मूर्ति से मिली थी, तो मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया था. ओके. सो दैट्स माय, और मैं उनके साथ 15 सेकंड बैठी होंगी. उनको जब मैंने वो दिया था ना, उन्होंने खोला, तो वो मेरे लिए, आई वुड जस्ट से, इफ आई थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव डन टिल डेट, so many more things. मतलब अगर मैं ऐसे सोचने बैठूंगी तो बहुत सारी चीजें हैं, बट दैट वन थिंग वाज दैट टॉप्स एवरीथिंग. अभी तक की जर्नी में सबसे हैपनिंग मोमेंट ये रहा होगा. यस, बहुत है. मतलब इफ यू आस्क मी, it's a happening moment almost, like कुछ ना कुछ हो जाता है, and that makes me आज ही. So I go to classes, fine art classes. I'm working on this big canvas painting, and that's what for me, it's not about those big moments. मैं अभी आप बोलोगे सबसे बड़ी चीज क्या हुई, तो I can't remember, but आज if you ask me, आज मैं मेरी क्लास में थी, and my sir who was also working on my painting with me, and when he was just showing me, I was like, I felt so good. I could just see him paint the entire time. It's just that for me. So if you ask me highlight क्या है, it's that कि मतलब आज मैंने just to realize that wow, it's such a good thing to just paint, to see someone paint. Well, don't take it other way, but Yeah. you seem very happy. पता है, जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हो, you seem very happy and joyful. मैं legit मजाक से, I'm not kidding you, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कोई ऐसा बंदा देखे हुए जो इतना खुश हो. legit. Yes. No, seem very definitely. happy. And thank you so much. But I think मतलब up down तो है ही, but I can just tell you, I think 2-3 दिन पहले I was literally doubting myself. हाँ, वो सेल्फ डाउट तो वही जर्नी कि का पार्ट है. it's a part, of हाँ, वो course. जर्नी का पार्ट है. But for me to just go to my classes, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कर लिया, उसमें मुझे काफी चीजें रियलाइज हो गई कि वो 2 घंटे जो मैंने मेरी क्लास में बिताए, जहाँ पे सिर्फ मतलब पूरा माहौल ही है कि सब पेंट कर रहे हैं, वो एक बड़े कैनवस पे पेंट कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मेरे सर ने एक स्टोरी है. तो मैं मेरे सर के साथ बैठी थी, एंड किसी पे तो हम उस टाइम मेरे में सेल्फ डाउट, उस टाइम मतलब आई थिंक ये काफी 5-6 महीनों पहले की बात है, उस टाइम मेरे में सेल्फ डाउट इन जनरल थोड़ा बहुत था. तो जब मैं काम कर रही थी, तो सर ने मुझे पूछा कि आपने कितने पेंटिंग्स बनाए हैं अभी तक. और यूजुअली जो हम ऐसा, जब कोई भी ऐसा पूछता है तो मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा, अच्छे पेंटिंग्स कितने बनाए थे. तो मैंने बोला मतलब 100 बनाए होंगे इन टोटल. कितने बनाए होंगे? उन्होंने बोला कि डोंट ऐसा मत सोचो, जब से तुम बच्चे थे तब से अभी तक कितने पेंटिंग बनाए. वो बोलते कि 1000 तो बनाए होंगे. मैंने बोला 1000 कैसे पॉसिबल है, 1000 तो बहुत ही बड़ा नंबर है, मतलब नहीं बना सकती. तो बोलते कि डोंट थिंक अबाउट गुड और बैड, कि ये अच्छा पेंटिंग था या बुरा था. इफ यू थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव मेड टिल डेट, वो जब मैंने वो सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो 1000 को भी टॉप कर सकता है. सो दैट्स द थिंग, वी ऑफन ऑफ कोर्स, मतलब ये 2 घंटे जो मैं बताती हूँ, तब मुझे काफी दूसरी चीजें ऐसे रियलाइज हो जाती है कि आई हैव टू कीप गोइंग एंड कीप डूइंग इट. दैट्स या. So let's talk about business. यस. How it's going?
It's good. I'm able to live in Bombay. Of course. So hopefully it goes well. It's gonna grow. Sometimes होता है तो मम्मी पापा से पैसे आ जाते हैं. वो नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं. But touch wood, it's been going good. धीरे धीरे I am thinking of. But मतलब ये होता है ना, when you start earning, it's like everything just comes down to that. Even if you don't want it, it does. मतलब हर चीज you connect it to that. And but I would just say that I'm extremely grateful commercially जैसा भी अभी हो रहा है. Of course, मतलब आगे चल के कैसा क्या होता है, ग्रो होता है नहीं होता है, मुझे वो एक कहीं ना कहीं मन में सबसे बड़ा फियर नहीं, वो थोड़ा टाइम पहले ये था कि व्हाट इफ आई जस्ट स्टे लाइक दिस. कंसिस्टेंट, मतलब कांस्टेंट. मतलब कांस्टेंट मुझे रहना है, बट आफ्टर अ पॉइंट, नॉट राइट नाउ. कांस्टेंट रहने का प्लान है, पर अभी के लिए मुझे ऐसा है कि मेरा जो एनर्जी है मुझे उसको यूज करना है इन द बेस्ट वे पॉसिबल. तो मेरा वही, मुझे ऐसा मेरा खुद के साथ ही वो कॉन्वर्सेशन चलता रहता है कि टुडे एवरीथिंग दैट हैपेंड, if I just stepped out of my house, if I did like 2-3 things, I'm happy. I'm like okay, use करा, मतलब ऐसा. I need to be constantly, I don't know, I have it, I'm constantly moving. इधर से ये, इधर से वो, इधर से ये, इधर से वो, because that's what I think. It can also be my fear of just being constant right now, which I don't want to be. Really? Maybe it can be a result of that, but so many other things also, because I know that okay, I have potential, and I know that I have talent. I that's something that I say out loud also. I know I've worked really hard for it, and what I bring to the table, I'm very confident about that. उस लेवल पे कभी इनसिक्योरिटी मुझे अब नहीं होती. मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं जो करती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, तो मुझे जो करती हूँ मैं, मतलब आई नो, मतलब वैसा कि you can try some other things as well, but what I do, I just give all of me in that. I know my shit. Yeah, exactly. So वैसे है, तो बस बाकी तो. बट अगर मैं पूछूं कि पहले की सीट में और अभी की सीट में क्या फर्क है मेजर? I think I've become good with I've become a full extrovert. So I'm very good with talking people now. I've seen that growth in me. So if you tell me to go and just talk to someone randomly also, I can do that. And in my field, you really need that. Yes. For sure. I mean, how you market yourself, how you sell yourself is something that you really need. काफी आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनका टैलेंट बहुत अच्छा है, बट दे जस्ट डोंट नो हाउ टू पुट इट आउट देयर इन द वर्ल्ड. उसमें कैसा होता है ना कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि एक आर्टिस्ट ऐसा है जिसका टैलेंट बहुत है, बट उसमें मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, उसमें वो तरीका नहीं है कि वो बताए कैसे, और एक है जो थोड़ा एवरेज है बट उसमें वो बहुत अच्छा है. दिस इज व्हाट वी नीड. या दिस इज व्हाट वी नीड, बिकॉज एवरेज ना हमेशा अच्छा हो सकता है. हाँ, बट ये जो स्किल है, इफ यू नो हाउ टू टॉक, इफ यू नो हाउ टू सेल योर आर्ट, ऑफ कोर्स ये भी मे बी जो बेस्ट है वो भी धीरे धीरे ट्राई करेगा तो सीख जाएगा. तो वही है कि मैं तो मानती हूँ कि मैं तो एक पॉइंट पे ऐसी इंसान थी जो सोचती थी कि नहीं, मैं तो अपना काम आर्ट करूंगी, जिसको देखना वो देख लेगा. बट ऐसे नहीं होता है. You have to be out there, you have to talk to people, you have to make a brand out of yourself. If so, I know for a fact that if I'm running this whole thing, it runs on me being a brand. I am the brand for CPATC. There's nothing, I'm not selling a product. So to just be out there and talk about what I feel, what I think, or to talk about what I create, एंड बहुत ही मतलब ऐसे टू द फेस नहीं कि आप जहाँ जा रहे हो बस अपने बारे में बात करते रहो कि मैं ये करती, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो नहीं. बहुत ऐसे कि मतलब ऐसे सटली कि मतलब ठीक है, थोड़ा जानो दूसरे के बारे में भी कि दूसरे किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, मतलब क्या इंटरेस्ट है, वो सब है. साथ साथ में कीप मीटिंग मोर पीपल एंड देन कीप making sure, just make sure that okay, you're talking about this constantly. Nice. So I would just say that that's the biggest difference. And apart from that,
I think that has changed my personality. Okay. And I've become very good in front of camera, I would say. मैं पहले मैं भागती थी, मतलब I was just like I used to run, even like taking pictures and all of that was not my thing. But when I realized that okay, I do need this for what I want to be, that's when I realized that okay, I need to be on the camera, and then it has just been like a good ride. Okay. Yeah. So मतलब अभी तक का जितने मैंने आपसे बातें करी हैं वो मैंने आपसे बात करने से पहले थोड़ी रिसर्च करी थी कि मैं कैसे कैसे बात करूँगा, क्या क्या चीज़ों पे बात करूँगा, बट वो सारी रिसर्च मेरी फेल होते हुए दिखाई दे रही है मुझे. बट क्योंकि आई हैव अ रीज़न. मुझे पता चला था कि आप मतलब थोड़ी शाय नेचर की हैं और लोगों से कम इंटरेक्ट करना पसंद करती हैं. एक इंसिडेंट था कि आप एक बुक क्लब में थी, वहाँ पर आपने हेल्प की थी उसको इवेंट को वो करने में, बट आपको जब वो बुलाया गया ऐसा कुछ था तो आप वेरी शाय थी, मतलब ऐसी शाय नेचर की थी कि आप ऐसा आना नहीं चाह रही थी. How do you know that? I have my sources. Oh my god. नहीं तो मैं स्टार्टिंग में थी ना वैसे. हाँ, तो मेरे को वही जानना था, मैं ये सोच के आया था कि बट आप जो अभी मुझे पता चला, मतलब जैसे हमारी कन्वर्सेशन जा रही है, you don't lie, you are not shy, I can say that. No. You are very good and delightful now. person now. I can say that. Yeah. I think I've seen a lot of good connections in general built on the basis of that. So I've realized that, and I love to be that also. मतलब कि जो लग रहा है वो बोल दिया जो, but मतलब even like I don't know how you know about the whole event thing and all of that, but with the whole staff as well, like हम usually जो भी book store में जाते हैं जहाँ पे भी होते हैं, I love them with all my heart. I genuinely जो भी मतलब जो staff होता है हमारा, it's a regular spot also. Okay. So वहाँ पे जाना, उनसे मिलना, उनसे बात करना. I would just say that I'm not interested in their lives, कि मतलब वो personally क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वैसे नहीं हूँ मैं कि मतलब मुझे ये जानना है, ये सब नहीं है. But I just want to talk, that's it. Okay. Yeah, मतलब I'm पहले intrigued. आपको एज अ मतलब मेरे को पहले के बारे में जानना है कि जब आप इन चीज़ों से एज अ भागती थी, जैसा आपने बोला कि आप कैमरे से भागती थी, आपको स्पॉटलाइट नहीं चाहिए थी, आपको एज अ वो नहीं चाहिए था. वो मुझे अभी भी नहीं चाहिए. वो दैट्स समथिंग, नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वही कि मतलब आई थिंक आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न दैट, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अंडर द कार्पेट हो जाए तो ठीक है. ओके. ट्राइंग टू बी अ रॉबिन हुड. बट आपने अभी कभी ऐसा नोटिस किया कि आप में कहीं ऐसा इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब ये होता है कि यू आर गुड एट समथिंग, मतलब आप गुड हो इस किसी आर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को लेके, और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई तू अच्छा है या तू ये सही कर रहा है, बट आपको लगता है कि नहीं यार ये खाली मुझे चढ़ा रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं बातें, खुद को खुद को लो वो करना. At this point, if there's one thing that I can say on that is, वो होता है ना कि if you work on whatever that you're working on, you work on the result that you want from that is on the basis of the validation that you need. So मुझे पता है कि अगर मतलब जैसे जो भी मैं काम करती हूँ, कि अगर आज मैंने मॉम डैड ने उसकी तारीफ कर दी, आज मैंने रील डाला तो मुझे 1000 लाइक्स मिल गए, मुझे इतने कमेंट्स मिल गए, तो मैं खुश हो जाऊंगी. ऐसा हमारा यूजुअली ऐसा ही वो होता है. I'll tell you very honestly, for me, the moment I'm putting a reel out on Instagram, before that I'm really happy with what I've made. So the validation has come before that. Of course I want to grow कैसे करूंगी, reels likes आएंगे, मेरे followers बढ़ेंगे, उसको, but of course. I am not dependent on that. So if you are not dependent on validation, money or fame, internally I am. That's what. So I rely on. So मतलब मैं यूजुअली रात को काम करती हूँ. मैंने एक जैकेट बनाया, मैंने जैकेट बना लिया है, ठीक है. अब मैं मतलब ऐसे समझ लो कि यूजुअली ऐसा होता है रात से सुबह मुझे दिखता है होते हुए, तो मैं मेरे विंडो के सामने साइड में काम कर रही हूँ, म्यूजिक चल रहा है, एंड देन ऑलमोस्ट एट 6 AM in the morning is when I'm done with my jacket, and then when it's done I just go back and look at that. I see the sun rising in general, and
I'm just really happy. I'm proud of myself in that moment. So वो जो time होता है, that's when I'm quite happy with what I've done. वो internally अपने आप आ गया. अब जो भी मैंने करा है वो मतलब so my Instagram is basically my journal I would say कि है मैं जो भी कर रही हूँ डालते जा रही हूँ देख लो. But I'm not really. I really want to build something where I'm just not relying on Instagram through whatever the work that I'm working on. So मतलब ठीक है मतलब अभी because I know that it's working for me and I'm really grateful for that and I will keep on doing it but it's not just for that. मतलब you are hustling very hard but you are not expecting. Yeah. यार ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? ये पहला पार्ट तो हो रहा है, पहला पार्ट तो बढ़िया हो रहा है मेरा भी, दूसरा वाला नहीं हो रहा है. It's also about what you're working on. It can't just be. So one thing that I really learned, and it's from the book that I was talking about, is we often if you have the ability to talk really well, if you have the ability to just be smart and be bold about anything that you're talking about, it's great for you because people think that okay, you're really smart and whatever that you're doing, it's great. But when you come home and nobody is watching, कोई नहीं देख रहा है, तब तुम क्या कर रहे हो? तब are you able to do the hard work in those 4 hours or 5 hours when nobody is watching, nobody is appreciating? Damn. So if you can do that, क्या होता है ना फिर आप बहुत easily अपने काम पे attach हो जाते हो. If you're putting in the hard work, you're very easily attached to what you're doing. तो कैसा होता है ना कि if you achieve something because of that, you know कि इतना hard work डाला है, अपने आप ही खुद ही खुशी मिल जाती है. I also think I'm very attached to this. Exactly. So if you'll achieve something through this, you won't seek out validation from the outside world. You'll just be like, okay, I'm happy with what I've done, and now it's upon the world to just see however they want to see it. But see, the thing is, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अटैच हो रखा हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा अटैच हूँ. मतलब अगर छोटी सी भी कोई चीज़ होती है वो मुझे अफेक्ट करती है इसके रिगार्डिंग कि अगर फॉर एग्जांपल लाइटिंग में चेंज हो गया या गेस्ट के आने में थोड़ा वो हो गया या डिले हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई तो मुझे बहुत अफेक्ट करता है वो. उससे आपको करता है ऐसा या मेरे साथ ही चीज़ें? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नॉर्मल मतलब दिस इज क्वाइट नॉर्मल बट I'm too serious and I'm too okay and too chill for the work that I do together. कि मतलब ठीक है हो जाएगा अच्छा है ऐसा कि हाँ ठीक है और ऐसा रहता है कि फिगर आउट तो हो ही जाएगा अगर कितना ही बुरा हो जाए. Rock bottom when you hit there's always like the way is always up from that. So तब उसके बाद लगता है कि हाँ ठीक है. यार मतलब बातें करके चीज़ें क्लियर तो हो रही हैं. इट वॉज रियली यार मतलब चलो हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं. Yes, because I think we only have 7 minutes. 7 minutes. Yes. So मैं हर किसी से पूछता हूँ. नाउ इट्स योर टर्न. अगर आप अपने पास में जाकर कुछ चेंज कर सकते तो क्या चेंज करते? Nothing. Nice. Nothing. Not even like one single thing. ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा. जिससे पूछता हूँ सब यही बोलते हैं. सब अपनी लाइफ में बहुत ग्रेटफुल है यार लोग. That's such a good thing. या तभी मुझे चेंज करना पड़ेगा. बट नहीं जेन्युइनली मतलब अभी तक का मैंने जितने लोगों से भी ये पूछा है सबका जवाब यही है कि भाई अगर हम पुराना चेंज करेंगे तो अभी चेंज हो जाएगा और अभी हम बहुत खुश हैं. जैसा भी है स्ट्रगल चल रही है हासिल चल रही है बुरा होता है बट वी आर वेरी हैप्पी वी आर सेटिस्फाइड कि हमें पता हो जाएगा ऐसे टाइप्स के. तो सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप करंटली अपने आप में कोई चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? I would just say be a little less emotional because I think right now I am for a lot of things sensitive and emotional. Okay. So maybe that because I'm thinking everything from that perspective. Usually I am very okay ये ऐसा करा वो वैसा करा ये ऐसा करा done. Maybe because I think because I've been in this phase of just like questioning myself a lot and all of that, that's why I'm taking every decision on the basis of this feeling. Okay.
So maybe that. But I know it'll just like, it's a part and parcel. It'll come and go. So that. एंड थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड मिले तो आप दुनिया में क्या चेंज लाना चाहेंगे? Wow. इसका आंसर हर कोई अलग अलग देता है, बट हाँ, I'll have to Interesting. think. Okay. I'm so sorry. I'm just literally. no, take your time, zoned take your time, take your time. out. I know यहाँ it's पर- too. It might just too. It might be a little like selfish or shallow, but just like for people to experience what I experience every day in terms of my profession. Because I feel like मैंने काफी जगह देखा है कि लोग इस डर से दूर दूर भागते हैं कि मतलब हम अच्छे नहीं है इसमें, तो हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं टर्न आउट होगा. This whole mindset to just like, you know, not even trying anything. I'm in general talking about my art and art in general. कि और उसके साथ साथ में this whole thing in terms of education that we're providing, कि मतलब अच्छा ये कन्वेंशनल पाथ है, यहाँ ऐसे करो, इसके बाद ये रोड मैप, इसके थ्रू ये करोगे, ये हो जाएगा. मेरे कॉलेज में काफी चीजें गलत थी, बट मुझे पता था कि मेरे में उतना पावर ही नहीं कि मैं वो चेंज कर सकूं. तभी मैंने सोचा कि इट्स बेटर फॉर मी टू मूव फ्रॉम हियर एंड जस्ट डू समथिंग ऑन माय ओन. तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन सिस्टम, काफी लोगों को आइडिया ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ करियर कि वो क्या क्या कर सकते हैं. फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट. कि मतलब और इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत मतलब हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है. यही माइंडसेट रखना कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ एंड द अदर पर्सन कैन आल्सो डू समथिंग, जस्ट टू हैव दैट. If it makes you happy, I want to step in your shoe. Legit, मतलब यार मुझे देखना है कि मतलब होता क्या है. मतलब कोई इंसान, मतलब मैंने जितना आपसे बात करी, जितना आपको मतलब इंटरेक्ट करा, मुझे जो लगा मैं वो बोलूँगा कि आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि आपसे वो वार्मथ आती है. मतलब हालांकि आप मुंबई दिल्ली से हो, बट स्टिल यू आर काइंड ऑफ हैप्पी यार. And Yes, I'm not I saying have in my that, days, but I think this is. but I'm not saying in that way. Don't take it in a bad way. But I'm very jealous of people. That's that. I get that a lot. That's okay. But यही ना कि सिर्फ इसी को एक बेंचमार्क बना के सोचना कि that's how life should be. That's I don't think that's right. कि मतलब ठीक है, what you're doing, a lot of people would want to live your life as well. For sure. पर वही है कि part and parcel. You only know the struggles that you face every day, and it's about what you put out there for the world to see. You choose that. So I mean, if you choose as to what makes you happy, I think it will just come back to you. And this whole thing that give to the world, give as much as possible, and it will come back to you It's in the best true. way possible. Truly. Yes, for sure. Not in the exact same way, but maybe indirectly, somehow it will come back. Well, इसी हाई नोट पे एंड करते हैं. Yes. So it was nice. It was actually great and delightful talking to you. And Same here. Thank you so much. मैं वापस से बात करना चाहूंगा क्योंकि Of course, आपने, of course. अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो आपने मेरे दिमाग के चक्षु खोल दिए हैं. नहीं, really. We can definitely do it. I mean, we can do it one more time because I think first हमेशा ऐसा होता है कि we are trying to make a base. So we're trying to understand in general. Yeah, but after that is when we can just go deep in terms of the question as well. Yes. And For the sure, conversation for sure. also. Yeah. So meet you next time, and it was lovely, and I'm very grateful to have you as a guest. Truly. Thank you so much for inviting me or Okay. just like telling me to do this. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am.